بھائی نے سوال پوچھا ہے، گردے فیل ہو گئے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس کا حل بتا دیں۔ میرے محترم بھائیوں، بیماریوں کا علاج جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس بات کو جاننے کی کوشش کرو کہ یہ بیماری کیوں ہوئی ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ساری زندگی یہی سنا کہ بیمار ہوں گے دوائی کھائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن یہ کبھی نہیں سنا اور نہ یہ کبھی ہم نے سوچا کہ یار گردے خراب کیوں ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کو سمجھنے کی بات ہے، ایک ہے کہ چیز خراب ہوگی اس کا علاج کرو، اور ایک ہے کہ وہ چیز خراب ہی نہ ہو۔ دونوں میں سے صحیح کون سی ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، گردے خراب کیوں ہوتے ہیں، معدہ خراب کیوں ہوتا ہے، جگر خراب کیوں ہوتا ہے، آنتیں خراب کیوں ہوتی ہیں، ہڈیاں خراب کیوں ہوتی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے جب آپ کھانا کھاتے ہو، خراب کھانا کھاتے ہو۔ اچھا، کھانا ہم وہی کھاتے رہتے ہیں، ساتھ گردے کا علاج شروع کر دیا، ساتھ معدے کا علاج شروع کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں، انسان کو چلانے کے لیے انرجی چاہیے، توانائی چاہیے، اور یہ انرجی جو ہے، یہ توانائی جو ہے انسان اپنے کھانے اور پینے سے حاصل کرتا ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن جو کھانا گلا ہوا ہے میرے محترم بھائیوں، وہ کبھی بھی آپ کو طاقت نہیں دے گا۔ تو سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کھانے کو بند کرو جو گلا ہوا ہے۔ اور گلا ہوا کھانا کون سا ہوتا ہے میرے محترم بھائیوں؟ جو سلور میں، سٹیل میں، نان سٹک میں، ٹیفلون میں، پریشر کوکر میں جو کھانا پکتا ہے وہ پکتا نہیں ہے، گلتا ہے۔ اور جتنی چیزیں خراب ہوتی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کا گلا ہوا کھانا ہے، آپ کا گلا ہوا کھانا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، گلا ہوا کھانا کھا کے آپ کی کوئی بھی چیز ٹھیک رہ سکتی؟ تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، ایک طرف ہم گردے کا علاج کرا رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف کھانا کون سا کھا رہے ہوتے ہیں؟ وہی کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام میرے محترم بھائیوں، کھانا پکا ہوا کھاؤ۔ کھانے کو پکانے کے لیے جو کوکنگ آئل استعمال کرتے ہو نا میرے محترم بھائیوں، جتنے لوگوں کے اندر بلاکیج آ رہی ہے، کسی کی 2 نالیاں بند ہو گئی، کسی کی 3 ہو گئی، کسی کی 4 ہو گئی، کسی کی 1 نالی بند ہو گئی، میرے محترم بھائیوں یہ بلاکیج ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کا کوکنگ آئل ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اپنے کوکنگ آئل بدلو، تیل وہ استعمال کرو جو کبھی جمے نہ۔ تیل کون سا استعمال کرنا چاہیے؟ جو کبھی جمتا نہ ہو۔ اور میرے محترم بھائیوں، وہ بہترین تیل سرسوں کا ہے، تو اپنا کھانا سرسوں کے تیل میں پکاؤ۔ تو پہلا کام، کھانا مٹی کی ہانڈی میں پکاؤ۔ مٹی کی ہانڈی میں کھانا پکتا ہے اور باقی ساری ہانڈیوں میں کھانا گلتا ہے۔ دیکھو 50 سال پہلے کون سی ہانڈیاں تھیں؟ کبھی کسی نے سنا تھا گردے خراب ہوئے؟ کسی کا جگر خراب ہوا، کسی کا معدہ خراب؟ 50 سال پہلے میرے بھائیوں ہسٹری اٹھا کے دیکھو، پاکستان میں گنتی کے کچھ اسپتال تھے، اور وہاں جا کے مریضوں کے اگر رجسٹر دیکھو گے نا 50 سال 60 سال 70 سال پیچھے، تو پورے مہینے میں کوئی 50 یا 100 مریض آتا ہوگا، اور آج کئی ہزار مریض ایک دن میں آتے ہیں۔ اور ایک ہاسپٹل نہیں ہے، اب تو ہر گلی میں ہاسپٹل ہے۔ اتنی پرچون کی دکانیں نہیں ہیں جتنی میڈیکل سٹور کی دکانیں ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ایک سازش ہے، اس کو سمجھو۔ میرے محترم بھائیوں، میں پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کمزور مومن کی نسبت طاقتور مومن زیادہ پسند ہے۔ بتاؤ، اللہ ہمیں کمزور دیکھنا چاہتا ہے کہ طاقتور؟
शैतान हमें कमज़ोर देखना चाहता है, और जो शैतान के साथी हैं वो कमज़ोर देखना चाहते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो इतनी बीमारियां हैं ना, ये 5 काम जो आपको बताने लगा हूं ना, ये हर बीमारी का इलाज है, ये हर बीमारी का। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हांडी मट्टी की लेके आनी है। उसको पकाने के लिए तेल कौन सा लेना है? मेरे मोहतरम भाइयों, किसी का मैदा ख़राब है, किसी का जिगर ख़राब है, किसी के जोड़ ख़राब है, किसी के गुर्दे ख़राब है, किसी की आंतें ख़राब है, जितनी चीज़ें ख़राब हैं, अल्लाह का वास्ता है सबसे पहले अपना खाना ठीक करो। देखो, ताकत आपके गुर्दों को ताकत किसने देनी है? दवाई ने कि खाने ने? तो खाना अगर हजम ही नहीं होगा तो उसको ताकत कहाँ से आएगी? आपके मैदे को ताकत किसने देनी है? खाने ने। तो सबसे पहले किसको ठीक करना चाहिए? जब आपका खाना ठीक हो जाएगा तो बाकी इंशाल्लाह इलाज करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला काम, खाना किस में पकाएंगे? मट्टी के बर्तन लाने से पहले एक नीयत बनाओ। वो नीयत क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम जिस कौम की मुशाबत करती है उसी के साथ उठाई जाएगी। तो हमने किसके साथ उठना है? प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बर्तन कौन से थे? तो हमारे घर में कौन से होने चाहिए? देखो, सेहत भी मिलेगी और आखिरत में साथ भी, तो कितने फायदे हो गए। तो मट्टी के बर्तन लेके आएंगे, सरसों के तेल में खाना पकाएंगे। अब सरसों के तेल में 5 प्रॉब्लम है। उसका रंग अच्छा नहीं, जायका अच्छा नहीं, खुशबू अच्छी नहीं, गाढ़ा है, झाग है, हमने कभी उसको खाया नहीं इसलिए वो पता नहीं कैसा होगा। मेरे मोहतरम भाइयों, 5 काम करो। 2 किलो सरसों का तेल लो, उसमें 1 बड़े साइज का प्याज डालो, 10 उसमें सब्ज मिर्च डालो, 10 लहसुन की तुरियां डालो, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डालो। इन सारी चीज़ों को छोटा छोटा काट लो और 1 बड़ा चम्मच उसमें ज़ीरा डालो। मेरे मोहतरम भाइयों, इसको इतना पकाओ, इतना पकाओ, इतना पकाओ कि सारी चीज़ें ब्राउन हो जाए। इसको छान लो। मेरे मोहतरम भाइयों, ये वो तेल है जो ज़िंदगी में आपने कभी नहीं खाया होगा। मैं गारंटी से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह रहमान, जब आप इस तेल में खाना खाओगे, आप अपनी ज़ुबान से बेसाख्ता कहोगे कि यार, इससे अच्छा तेल तो शायद हमने कभी ज़िंदगी में लिया ही ना हो। पता है क्यों? हम कहाँ से पैदा होके आए हैं? हमारा बदन किस चीज़ से बना है? मट्टी का। और हमने वापस कहाँ जाना है? सरसों का तेल कहाँ से आता है? मेरे मोहतरम भाइयों, जहाँ से हम आए हैं ना, मट्टी से आए हैं। हर बंदा, ये जो मेरा बदन है ना, जहाँ मैंने दफन होना ना, मैं उसी कब्र, मेरी वही मट्टी है। तो मट्टी से निकलने वाले बदन को, मट्टी से निकलने वाला जो तेल है ना मेरे मोहतरम भाइयों, वो तकवीयत देगा। तीसरे नंबर पे आपके जिस्म को सबसे ज्यादा जरूरियात है नमकियात की। आपकी बदन को 60% नमकियात चाहिए। मेरे मोहतरम भाइयों, नमकियात 2 चीजों में मिलते हैं। ये जो मिनरल्स होते हैं ना, या नमक में होते हैं या पानी में होते हैं। तो आप लोग पानी को क्या कहते हो? मिनरल वाटर। क्या कहते हो? मिनरल वाटर। मेरे मोहतरम भाइयों, ये धोखा है। और आप हैरान होंगे कि गोरों ने ना अदालतों में केस किए हुए इन कंपनियों के ऊपर जो लिख के बेचती हैं मिनरल वाटर। वो कहते हैं ये तो मिनरल लेस वाटर है, इसमें से तो मिनरल निकाले जाते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे बेहतरीन पानी वो है जो ज़मीन से निकलता है। अल्लाह का वास्ता है, ये जो फिल्टरों वाला पानी है ये मत पियो। ये फिल्टर वाला पानी ना पियो। सबसे बेहतरीन, यार 50 साल पीछे जाओ, 60 साल पीछे जाओ, ये जो 60 70 साल के बाबे बैठे, इनसे पूछो, ये बताएंगे डंगरां दे नाल खालां तो पानी पींदे सी कि नहीं सी पींदे? कभी किसी के गुर्दे खराब हुए? कभी किसी के गुर्दे खराब हुए? और मेरे मोहतरम भाइयों, ये सिर्फ जिन्होंने चीजें बेचनी है ना, वो आपको डराते हैं। और मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे बेहतरीन पानी पंजाब का है। सबसे बेहतरीन पानी, अच्छा पंजाब का मतलब क्या है? 5 आब। क्या मतलब है? 5 आब। 5 आब। 5 आब का मतलब है 5 पानी। तो पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन पानी जमजम है, और जमजम के बाद अगर कोई दुनिया में पानी है तो मेरे भाइयों वो पंजाब का है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अपने पंजाब का पानी पियो। ये फिल्टरों का पानी, ये मिनरल वाटर, ये एक्वाफिना, ये नेस्ले, मेरे मोहतरम भाइयों, ये आपके गुर्दों को ख़त्म कर देंगे। मेरे भाइयों, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, यहूद व नसारा कभी तुम्हारे दोस्त
ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। मेरे मोहतरम भाइयों, वल्लाह ये साजिशें हैं, इससे बच जाओ, इससे बच जाओ। जो बंदा अपनी फितरत के जितना करीब रहेगा ना वो सेहतमंद रहेगा। तो पानी और नमक मेरे भाइयों वो पियो जो मिट्टी से निकलता है, नमक वो खाओ जो मिट्टी से निकलता है, और वो नमक है ख्योड़ा का। पिंक हिमालयन सॉल्ट जो है ना, ये जो डले वाला नमक होता है, हमारी यहाँ दादियाँ नानियाँ पहले क्या लेके आती थी? नमक लेके आती थी, उसको घर में कूटती थी, पीसती थी। मेरे मोहतरम भाइयों, वो नमक लेके आओ, ठीक है? और उसको घर में कूटना है, घर में पीसना है, बाहर चक्की से पिसवाना नहीं है। और मेरे भाइयों, उसके बाद आटा। मेरे मोहतरम भाइयों, आटा वो खाना था जिसके अंदर सूजी हो, जिसके अंदर मैदा हो, जिसके अंदर चोकर हो। मेरे भाइयों, वो आटा आता है चक्की से। और पहले समझ लो चक्की कौन सी होनी चाहिए। चक्की वो लेनी है जो पत्थर वाली है, लोहे वाली चक्की नहीं, चाइना की चक्की नहीं। मेरे मोहतरम भाइयों, जो आटा गर्म हो जाता है ना वो जल जाता है। जो आटा गर्म हो जाता है वो क्या होता है? पत्थर वाली चक्की में कभी आटा देखो, वो कभी गर्म नहीं होता, वो कभी गर्म। मेरे मोहतरम भाइयों, पत्थर वाली चक्की का जो आटा होता है ना, उसमें चोकर होता है, उसमें सूजी होती है, उसमें मैदा होता है, उसमें फाइबर होते हैं, क्योंकि उसके जितने ग़िज़ाई अज्जा होते हैं वो उससे आटे के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन जो चक्कियाँ आप लोगों ने लगवाई हैं, ये जो आपके दाएं बाएं लगी हैं, मेरे मोहतरम भाइयों, ये लोहे की चक्कियाँ, ये चाइना की चक्कियाँ, ये इतना तेज़ घूमती हैं, इतना तेज़ घूमती हैं कि आटे को जला के सुर्ख कर देती हैं। और जब ये चक्की से आटा निकलता है, नीचे हाथ रखोगे तो क्या होगा? हाथ क्या होगा? मेरे भाइयों, हाथ जल जाएगा। सोचो, जो आपके हाथ को जला दे, क्या वो आटे की ग़िज़ाइयत को बाकी रखेगा? तो मेरे मोहतरम भाइयों, आटा पत्थर की चक्की का लो। सबसे बेहतरीन तो यही है कि अपने घर में चक्की लगाओ पत्थर वाली। उसके मैं आपको 500 फायदे बता सकता हूं। कितने फायदे? ये जितने लोगों के बच्चे ऑपरेशन से हो रहे हैं ना, अगर चाहते हो ना कि हमारे बच्चे नॉर्मल हो तो चक्की लगा लो। जितने लोगों की कमर में दर्द है ना, चक्की लगा लो। जितने लोगों के पेट बढ़े हुए हैं, चक्की लगा लो। जितने लोगों के जोड़ों में दर्द है, वल्लाह चक्की लगा लो। मेरे मोहतरम भाइयों, चक्की लगाना, इसको समझो। आपको पता है, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा चक्की चला चला के उनके हाथों पे क्या हो जाते थे? गट्टे हो जाते थे। मेरे मोहतरम भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चक्की, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला को चक्की किसने दी थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताओ, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन इल्ला वही यूहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर वही के कोई काम करते तो ये वही चक्की का हुक्म किसने दिया? मेरे मोहतरम भाइयों, चक्की वाला आटा खाओ। और इसके बाद मेरे मोहतरम भाइयों, सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस कर लो, खाने के साथ पानी मत पियो। खाने के साथ पानी, इसको समझो। कभी किसी जानवर को खाने के साथ पानी पीते देखा है? कुरान में ना अल्लाह ताला ने एक आयत उतारी, कुलू वशरबू वला तुसरिफू। इमाम ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, तिब के लिए इस आयत के अलावा अल्लाह कोई चीज नाजिल ना करता, ये एक आयत ही काफी थी। मेरे मोहतरम भाइयों, खाना और चीज है, पानी और चीज है। कोई जानवर खाने के साथ पानी, और हम खाना कम खाते हैं, पानी। पता है क्यों? क्योंकि हम खाने को निगलते हैं। एक लुकमे को 32 बार चबाओ। एक लुकमे को कितना चबाओ? खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटा बाद पानी पियो, और एक लुकमे को 32 बार चबाओ। बताओ मेरे भाइयों, जब खाने को 32 बार चबाओगे, वो खाना बन क्या जाएगा? वो खाना क्या बन जाएगा? मेरे मोहतरम भाइयों, ये आपकी जिंदगी की जितनी बीमारियां हैं, वल्लाह उसको ठीक करने में 50% किरदार अदा करेगा सिर्फ ये 5 काम करना। पकाओ ठीक और खाओ ठीक। और एक बात और इसके साथ याद रखो मेरे मोहतरम भाइयों, सुबह का खाना पेट भर के खाओ 60%, दोपहर का खाना खाओ 30%, और शाम का खाना खाओ 10%। सबसे बेहतरीन खाना किस वक्त का है? सुबह का। क्योंकि मेरे भाइयों, सुबह का वक्त खैर बरकत का होता है। तो जो सुबह के वक्त पेट भर के खाना खाएगा, इंशाल्लाह
یہ جتنی تکالیف ہے نا، یہ بھائی نے بتایا گردے فیل ہو گئے. میرے بھائیوں ڈاکٹروں نے صرف یہی کہنا ہے اس کے یہاں ڈائلسس کراتے رہو، یہاں گردے ٹرانسپلانٹ کراؤ. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل ہے؟ یہ کھانا کھلانا شروع کر دو. یقین جانو، کر کے دیکھو. دو باتیں ہیں، یہاں تو فرق پڑنا ہے، یہاں تے پہلے کڑے ٹھیک نے. آپ لوگوں کے گردے پہلے کون سے ٹھیک ہیں؟ میں کون سی کوئی دوائی بیچ رہا ہوں بھئی؟ میری بات اگر نہیں مانو گے تو گردے تو پہلے بھی خراب ہے، جگر تو پہلے بھی خراب ہے، میدا تو پہلے بھی خراب ہے. میں کون سا کچھ بیچ رہا ہوں کہ جو مجھے پریشانی ہونی ہے؟ تو میرے بھائیوں میں تو آپ کا بھلا کر رہا ہوں، اگر کر لو گے تو آپ کا فائدہ ہے. واللہ ایک ایسا بندہ جو بتاتا تھا میں ایک ہفتے میں 3 بار ڈائلسس کراتا تھا، صرف اس نے یہ چیزیں بدلی ہیں. 8 مہینے لگے ہیں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہتا ہے میرا رنگ روپ طاقت قوت اتنی بدل گئی ہے کہ میں زندگی میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں گاڑی خود چلا کے میں کبھی آپ کے پاس ملنے کے لیے آؤں گا. میرے محترم بھائیوں، یہ صرف اور صرف طریقہ بدلنے سے آنا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے کھانے کا طریقہ، اس کو بھائی نے سوال پوچھا ہے گردے فیل ہو گئے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس کا حل